Welcome students. In previous lecture we were taking up basics of complex numbers, in which we took complex number, it is conjugate, it is modulus, and it is powers of I and multiplicative inverse of complex number. Now in this lecture we will take up organ plane and polar representation of a complex number. If we consider a complex number z equal to x plus iy, then this complex number can be represented by a point x comma y in xy plane, or any point x comma y in xy plane can be represented as a complex number z equal to x plus iy. That means between the set of complex numbers and xy plane, there is a one-to-one correspondence. This xy plane on which we represent complex numbers as ordered pairs is called as complex plane or organ plane. In the xy plane, in which we represent a complex number z equal to x plus iy as a point or as an ordered pair, this plane is called as complex plane or organ plane. It is of this shape. This is x-axis. It is also called as real axis. And this is y-axis. This is also called as imaginary axis, because any point having x coordinate is from this, and here we have x is the real part, so this is called as real axis. Any point having y coordinate will be from y axis, and y coordinate here represents imaginary part of the complex number. Hence, this is called as imaginary axis. For example, if we have z equal to 3 plus 2i, it can be represented as a point 3, 2. For example, here 1, 2 and 3. 1, 2. This is 3, 2 point P. It represents the complex number z, or it represents the ordered pair 3, 2. It is one and the same thing. You write P 3, 2 or PZ. It represents the same thing. Similarly, if we have Z1 equal to minus 6 plus 5i, minus 6 plus 5i, minus 6 comma 5. This is the point which represents Z1 on this complex plane, on xy plane or on organ plane. Minus 6 x में से लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is minus 6. 5 यहाँ से लेना 1, 2, 3, 4 and 5. This is 5. तो minus 6 comma 5. This is the point. For example, P Z1 लिखिए और P minus 6 comma 5 लिखिएगा. समझ आता है? तो इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास z equal to 7 plus 0i होगा, 7 plus 0i. That means imaginary part is 0, so it is a real number which is 7. It is a real number which is 7. It can be represented as 7, 0. 7, 0. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आएगा. 7, 0 यहाँ पर आएगा. P7, 0 और PZ2 लिखिएगा, Z2. तो जो ये रियल पार्ट है, प्योरली रियल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन x-axis. Purely real number is represented on x-axis. So this x-axis is called as real axis. And purely imaginary number लीजिएगा, Z3 equal to 3i for example. तो ये बन जाएगा 0 plus 3i. तो इसका रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है. तो 0, 3 आप रिप्रेजेंट कहां करेंगे? यहां पर. तो ये बन गया PZ3 और 0, 3.
So this point represents Z3, which is purely imaginary number. So this is called as imaginary axis. तो ये था अर्गन प्लेन पर किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। उसके बाद आइएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ से। पोलर रिप्रेजेंटेशन z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो हम लेंगे यहां पर कॉम्प्लेक्स प्लेन। लेट पी दिस पॉइंट, पी z बी द पॉइंट which represents this z on xy plane। अगर हम यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे pm, तो ये बन जाएगा x, क्योंकि अभी आपने देखा इसका x कोऑर्डिनेट होगा x एंड y कोऑर्डिनेट होगा इसका y कोऑर्डिनेट होगा y। और ज्वाइन POP, let OP make angle theta with x axis, positive x axis, and let OP is equal to r। This complex number is in the form x plus iy. We say it is in Cartesian form because it has coordinates from x comma x axis and y axis. Now, if we represent this complex number in values of r and theta, r is the distance of the complex number, distance of the point representing a complex number from origin, and theta is the angle which OP makes with positive x axis. Which OP makes with positive x-axis. If we represent this z in the form of r and theta, that form is called polar representation or polar form of z. How we represent this? देखिएगा, in this triangle, in triangle OPM, देखिएगा x by r तो हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वो बन जाएगा cos थीटा। y by r परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, इज इक्वल टू साइन थीटा। दिस इंप्लाइज x क्या बन जाएगा r cos थीटा एंड y क्या बन जाएगा r sin थीटा। नेम दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें निकालना है आर एंड थीटा, ये एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो एक्स दिया आर कॉस थीटा, वाई दिया हमने आर साइन थीटा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन निकालिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। लेकिन ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हाँ 1 के बराबर है, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर क्या निकलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज इक्वल टू वी नो दैट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मॉड ऑफ z। So this implies r equal to mod z. ये r का वैल्यू निकला, that means r is equal to mod z. Also divide second by first, divide second by first, तो बन जाएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। देखिएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इक्वल टू y by x, इक्वल टू y by x। तो r and r will cancel out. This implies tan theta is equal to y by x. This implies theta is equal to tan inverse of y by x. So what we have got, r is called modulus of z, and theta is called the argument of z, called the argument of z. That is, argument of z is the angle which theta makes with positive x-axis, which OP makes with positive x-axis is equal to tan inverse of x.
theta is equal to tan inverse, theta is called as the argument of z. So what we have got, polar representation of z is given by, this implies polar representation of z is क्या है, z equal to x plus iy. x क्या है, r cos theta, r cos theta plus I times r sin theta. तो ये क्या निकलेगा, r इंटू cos theta plus I sin theta. Z equal to r into r times cos theta plus I sin theta. This is the polar representation of Z. R times cos theta plus I sin theta, where r and theta can be calculated from equations first and second simultaneously. Now let us move towards another exercise 5.2, where we have to find polar representation of Z. हाँ, तो polar representation of Z किसके बराबर है, r times cos theta plus I sin theta, where x can be taken as r cos theta and y can be taken as r sin theta. Exercise 5.2 क्या कह रहा है, find modulus and arguments of each of the complex numbers in exercises 1 to 2. Exercise 5.2 क्वेश्चन फर्स्ट है, z is equal to -1 minus I root 3. Let r cos theta equal to x. x क्या है, या -1 है. नेम दिस फर्स्ट. r sin theta equal to -√3, क्योंकि यहां पर x प्लस आई वाई, x -1 है तो प्लस माइनस यहां पर लगाओ तो यहां पर रहेगा प्लस, तो बन जाएगा i इंटू -√3, तो r sin theta equal to y. नेम दिस सेकंड. Squaring and adding first and second, square and add करो, तो r square cos square theta plus r square sin square theta equal to -1 square plus -√3 square. This implies r square into cos square theta plus sin square theta is equal to -1 स्क्वायर बन जाएगा 1, माइनस का स्क्वायर बन जाएगा प्लस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल तो बन जाएगा 3. दिस इंप्लाइज, हाँ, r स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 इज इक्वल टू 4. सो r विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू √4. दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 2. तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या निकला, 2 निकला. दिस इंप्लाइज मॉड z इज इक्वल टू 2. अब आर्ग्यूमेंट किस तरह निकालेंगे, use this value of r in first and second. Using value of r in first and second, तो बन जाएगा 2 times cos theta is equal to -1, 2 times sin theta is equal to -√3. This implies cos theta किसके बराबर है, -1/2 के बराबर. sin theta किसके बराबर है, -√3/2 के बराबर है, -√3/2 के बराबर है. दिस इंप्लाइज cos थीटा, हाँ माइनस तो यहीं पर रखिएगा, याद रहेगा, माइनस यहां पर रखो. 1/2 का cos कहां पर है, cos what value of theta can give cos equal to 1/2. किस वैल्यू पर cos थीटा 1/2 होता है, what value of theta, at what value of theta cos theta is 1/2. cos 60, cos of 60 degree means π/3. इसी तरह sin थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/3, क्योंकि जहां पर cos 1/2 है वहीं पर sin √3/2. अब देखिएगा, माइनस यहां पर है और माइनस यहां पर है, x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो किस क्वाड्रेंट में जाइएगा, x और y दोनों माइनस हैं, इसमें प्लस है दोनों, इसमें x माइनस है y प्लस है, इसमें x माइनस है y माइनस है, इसमें x प्लस है y माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाइएगा. थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज दिस सिंपल एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट इज π-,
थर्ड क्वाड्रेंट इज पाई प्लस, तो पाई प्लस में ये दोनों नेगेटिव बन जाएगा, तो इस तरह देखिएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, तो साइन एंड साइन कैंसिल, कॉस एंड दिस इंप्लाइज थीटा दोनों में निकलेगा पाई प्लस पाई बाई 3, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 3 वजा 3 4 पाई बाई 3, तो हमारे पास क्या निकला वैल्यू, हाँ, so mod z is equal to 2 and argument of z is equal to 4 pi by 3, so polar representation क्या होगा, z लिखिएगा polar representation, z is equal to r times cos theta plus I sin theta, तो क्या निकलेगा polar representation, polar representation बन जाएगा इसका z is equal to r है 2 into cos of 4 pi by 3 plus I times sin of 4 pi by 3, ये वैल्यू निकला पोलर, हाँ इसने कहा था मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालो, उसके बाद यहाँ पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या बन जाएगा, z इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस I sin थीटा, यहाँ पर तो क्वेश्चन खत्म होता है लेकिन हम पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है convert each of the complex numbers given in exercises 3 to 8 in the polar form, polar form में ये कन्वर्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 3 में है z इक्वल टू 1 माइनस आई, तो यहां पर x क्या है 1 है, तो y का वैल्यू क्या है -1 है, ये लिख सकते हैं हम इस तरह 1 प्लस आई टाइम्स -1, तो पुट हाँ x देंगे r cos थीटा इक्वल टू x, नेम दिस फर्स्ट, r sin थीटा इक्वल टू -1, नेम दिस सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो बन जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा, इसी तरह इसका स्क्वायर ऐड कीजिएगा, तो r स्क्वायर को कॉमन निकालिएगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस -1 स्क्वायर इज 1, दिस इंप्लाइज यहां बन जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि ये 1 के बराबर है, r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो r क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू √2, हाँ देखिएगा आप कहेंगे कि r स्क्वायर अगर 2 है तो r निकलेगा प्लस माइनस √2, मगर मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज ऑलवेज positive, we don't take here negative sign because this r is the length which joins point P to origin and length cannot be negative, so we don't take here negative sign, r is equal to √2, तो हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो r का वैल्यू दीजिए इन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग वैल्यू ऑफ r इन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बन जाएगा 2 cos थीटा equal to 1 √2 cos theta, sorry, and √2 cos sin theta equal to -1. This implies cos theta क्या बन जाएगा 1 by √2 and sin theta क्या बन जाएगा -1 by √2, -1 by √2। हम क्या लिख सकते हैं यहां पर cos theta is equal to cos 45 cos pi by 4, क्योंकि cos 45 है 1 by √2, sin theta is equal to sin of माइनस साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4, क्योंकि साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई √2, इसी तरह cos पाई बाई 4 1 बाई √2 है। देखिएगा cos अगर हम लिखेंगे cos माइनस पाई बाई 4, यहां पर देखिएगा किस तरह, अगर हम इस तरह लेंगे 1 और -1, 1 और -1, 1 यहां पर ले लो -1 यहां पर, तो ये बन जाएगा हमारा जो P है PZ बन जाएगा, यहां ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का 1 -i, ये आपने देखा किस तरह बन गया, यहां पर 1 और यहां पर -1,
तो अब हम अगर हम एंगल ये लेंगे, ये क्या बन जाएगा, माइनस थीटा यहां पर दिया हुआ है, तो हम इस तरह कर सकते हैं हम, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव है, तो लिख सकते हैं हम कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4, क्योंकि कॉस डाइजेस्ट द नेगेटिव साइन, कॉस पाई बाई 4 और कॉस माइनस पाई बाई 4 सेम है। उसी तरह साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। So in both the cases, देखिए cos theta equal to cos minus pi by 4, sin theta equal to sin minus pi by 4. That means theta is equal to minus pi by 4. So polar representation क्या बन जाएगा? Polar representation of z is equal to r times cos theta plus I sin theta. तो ये बन जाएगा, हाँ cos r किसके बराबर है, √2, cos theta क्या है, cos of minus pi by 4 प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई। समझ आया बेटा, इस तरह करना है सब कुछ, तो आप खुद कर सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दिया हुआ -3, तो लिख सकते हैं हम इस तरह। क्वेश्चन नंबर 6 -3 है ये सिंपली। क्वेश्चन नंबर 6 इज z इज इक्वल टू -3, तो ये देख सकते हैं हम z इज इक्वल टू -3 प्लस 0 पुट r cos theta is equal to -3, name this first, r sin theta is equal to 0, name this second. Squaring and adding first and second, squaring and adding first and second, we will get r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to -3 square plus 0 square. इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड कीजिए, दिस इंप्लाइज r square इंटू cos square theta plus sin square theta किसके बराबर है, -3 square is 9 plus 0, दिस इंप्लाइज r square, क्योंकि ये 1 के बराबर है, is equal to 9. So r is equal to, this implies r is equal to √9, which is equal to 3, using value of r in first and second, दीजिएगा वैल्यू, 3 cos theta is -3, 3 cos theta is equal to -3, 3 sin theta is equal to 0. दिस इंप्लाइज cos थीटा किसके बराबर है, -3/3, और sin थीटा किसके बराबर है, 0/3. दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 0. बताइएगा cos थीटा 1 कहां पर है, माइनस तो यहां बाहर रखिएगा तो 1, 90 पर, 90 π/2 पर, cos π/2 इज 1, सॉरी cos 0 is 1 and sin 0 is 0. cos 0 is 1, sin 0 is 0. हम लिख सकते हैं इस तरह, देखिएगा cos of 0, cos theta is equal to 0 minus cos 0. हाँ, आप यहां पर एक काम कीजिएगा, कौन सा वैल्यू है जहां पर cos होगा -1 और sin होगा 0, sin 0 कहां का पर है, sin 0 is 0, sin pi is 0, sin 2 pi is 0, sin 3 pi is 0. हाँ, cos कहां पर 1 है, cos 0 is 1, cos pi is -1, cos 2 pi is 1, इसी तरह cos 3 pi is 0. हाँ देखिएगा, हमें वैल्यू लेना है 0 to 2 pi तक, 0 to 2 pi तक की वैल्यू लेना है, तो देखिएगा cos pi और sin pi, जहां पर cos pi -1 है और sin pi 0 है, तो यही वैल्यूज हम देंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos pi और sin थीटा इज इक्वल टू sin pi.
तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई, इन बोथ द केसेस थीटा इज इक्वल टू पाई। दूसरा तरीका यह करने का है कि आप वैल्यू लीजिएगा सिर्फ उनका जो आपके पास 0 to π/2 है। तो देखिएगा किस तरह, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 0 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0। तो देखिएगा हम एक काम करेंगे, अगर हम कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस, अगर हम π/2 प्लस जाएंगे तो साइन होगा, कॉस में चेंज तो उससे कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ कॉस है, यहाँ पर कॉस है, ये चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो पाई का वैल्यू दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कॉस तो माइनस है, कॉस नेगेटिव, साइन मगर पॉजिटिव है, देखिएगा साइन पॉजिटिव, तो पाई माइनस आता है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस 0 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस 0। तो दोनों केसेस में थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई। तो उस तरह कीजिएगा या इस तरह कीजिएगा, एक ही बात है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या निकलेगी, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो बन जाएगा r क्या बनता है, r इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos पाई प्लस i साइन पाई, cos पाई प्लस i साइन पाई। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ बढ़ेंगे। गुड डे बेटा, अल्लाह हाफिज।